Hello everyone, I'm Surabhi Verma. I'm founder director Sparsh for Children. Our organization works with children with autism, learning difficulties, ADHD and many more. And in these podcast series, I am talking about toileting and understanding the reasons behind toileting and strategies to help our children to successfully pee and poop in the bathroom and use the washroom correctly. Now, many parents come to me and say that children are resisting the removal of diapers for peeing or pooping. So जब हम डायपर उतार देते हैं तो हमारे बच्चे 2 hours, 4 hours, 10 hours के लिए अपनी पॉटी या पीपी रोक लेते हैं. They just don't go to the washroom and they don't want to go and sit on the toilet pot, जबकि वो कपड़ों के साथ आराम से बैठ जाते हैं, उन्हें बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. They have, और कई बारी in the past they have gone to the washroom, they have done pee in the washroom, but it has not come into a consistent routine. So अभी भी अगर उनके ऊपर छोड़ दिया जाए बच्चे के ऊपर, तो वो अभी भी अपने क्लोथ्स को वेट कर लेंगे या होल्ड कर लेंगे for 2 days, for 3 days also, till the diaper is not given. So if the child is showing that kind of resistance, then we have to understand why it is happening and what are the strategies कि अगर हमको इस resistance को break करना है तो उसके लिए हमें क्या strategies लगानी है. So today in the podcast we are going to specifically talk about when and how to manage this resistance of not letting go of diaper. What is it that diapers help our children to do? Diapers provide a constant body feedback. They are tight around the waist, so our children understand and they get that body feedback, which helps them understand that when they are pooping, it is easy. They can do it even in a standing position, which is an easy position for many of our children to go to the washroom, because that is their natural position. Standing is their natural position, so they don't want to sit down. Another reason can be that in diaper the child, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, चाइल्ड इज इन कंट्रोल. सो दैट मीन्स द एनवायरमेंट वो कहाँ पे वॉशरूम करेगा वो उसके बच्चे के कंट्रोल में है. वेयर to do the washroom, curtain के पीछे, कमरे के अंदर, when to do the washroom, that is also under child's control if they are wearing a diaper. तो वो बच्चे के कंट्रोल में, मुझे सुबह करना है, शाम को करना है, कब करना है और किसके पास करना है. कई पेरेंट्स कहते हैं मम्मा को अपने साथ ले जाता है या करने के बाद मम्मा के पास आकर खड़ा हो जाता है, ताकि उसको लगता है कि मम्मा किसी तरह से जज कर लेंगे एंड बिकॉज ऑफ द स्मेल और वट एवर मदर गेट्स टू नो कि अब ये पॉटी कराया है, फिर हम वॉशरूम में ले जाकर या बाथरूम में ले जाकर बिठाकर क्लीन करके चेंज कर देते हैं. सो देयर इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ कंट्रोल दैट आवर चिल्ड्रन आर दे बिलीव दैट दे गेट एंड दे एक्चुअली गेट बाय यूजिंग डायपर, एंड दैट इज व्हाई ऑल्सो दे अवॉइड लेटिंग गो ऑफ डायपर एंड दे अवॉइड गोइंग टू द टॉयलेट, बिकॉज सडनली जो उनका सेंस ऑफ कंट्रोल है वो चला जाता है. सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बिफोर वी बिल्ड इन द चेंज, बिफोर हम कहें कि टॉयलेट सीट पे बैठ के पॉटी करो, we have to bring in the familiarity. So therefore सबसे पहला स्टेप, स्ट्रैटेजी 1 जो हमें यूज करनी है कि सबसे पहले हमें एनवायरमेंट से बच्चे को कंफर्टेबल कराना है. सो अब हम डायपर में ही पॉटी करते हैं, मगर हम हमेशा बाथरूम में जाकर पॉटी या पी करते हैं, भले हम डायपर में करते हैं. सो इससे हम बच्चे को ट्रेन करें दैट एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम. आप बाथरूम, लेकिन द बाथरूम इज the right place to go and do pee or poop. The second strategy is, so they have understood the step 1 कि जब हमें टॉयलेट आता है, जब हमें वॉशरूम जाना है, तो मुझे बाथरूम में ही जाना है. Then the second step needs to start, and that is sitting on the toilet seat with clothes on when they want to do pee or poop. इसके अंदर ये बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाना चाहिए और उसके बाद हम माइनर ट्रांजिशंस करने शुरू करते हैं. दैट इज, हम डायपर को एक साइड से काट सकते हैं या एक साइड से ओपन कर सकते हैं. हम डायपर के अंदर नीचे में एक होल कर सकते हैं सो दैट द चाइल्ड ऊपर से फील्स पेल्विक से कि ही स्टिल वेयरिंग द डायपर, बट नाउ व्हेन ही इज सिटिंग द पूप डायरेक्टली गोज इनटू द
toilet seat. And the most crucial step is reinforcing the child positively. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, बहुत बारी जो हमारे बच्चे हैं वो सोशली अवेयर नहीं होते हैं कि करेक्ट क्या है, करेक्ट मेथड क्या है, या करेक्ट सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है. सो अगर हमारे बच्चे, इफ दे आर सक्सेसफुल in going to the washroom, sitting on the toilet seat and peeing, and we say very good, bring them out, तो उनके लिए वो ज़्यादा फर्क नहीं है. बट अगर उन्होंने वो करेक्ट बिहेवियर किया, हम ये भी कर सकते हैं कि हम पी के टाइम के ऊपर पूरा दिन बच्चा धीरे धीरे हम जैसे जैसे टाइम, प्रिडिक्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ द टॉयलेट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स करते हैं, तो हम देखेंगे द चाइल्ड स्टार्ट्स डूइंग पीपी इन द टॉयलेट पॉट. वंस इट हैज बीन सक्सेसफुल दैट डूइंग पीपी in the toilet pot, we remove the diaper, and the diaper is only given to the child at time of potty, at time of when the child needs to poop, and for the whole of the day, the rest of the day, the child starts becoming diaper free. And then हम जो टॉयलेटिंग के लिए, पूप के लिए स्ट्रैटेजीज है, मेकिंग द चाइल्ड सिट लॉन्गर, गिविंग देम अ टाइमर, इससे हम धीरे धीरे पूप के लिए भी उन्हें ट्रेन कर सकते हैं. कई बार पेरेंट्स आते हैं कि घर के अंदर अब ये डायपर फ्री रहते हैं, ये आराम से पीपी करने के लिए अपने घर के वॉशरूम में चला जाते हैं, मगर जब हम थेरेपी सेंटर लेके जाते हैं, हम मार्केट लेके जाते हैं, तो हमें पहनाना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कब कहाँ कर देगा. अगर एनवायरमेंट नया है, सो इट इज एज पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फर्स्ट टाइम जब हम उस बच्चे को मॉल लेके जा रहे हैं, हम उसे उस वहां के वॉशरूम के अंदर लेकर जाएं, हम बच्चे को वहां पे कंफर्टेबल करें. सो समटाइम्स हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप मॉल जो है वंस इन अ मंथ की जगह टॉयलेटिंग सिखाने के लिए, कंफर्ट जोन सिखाने के लिए किसी के घर लेकर गए हैं, मॉल लेकर गए हैं, तो पहले जाकर उनको वहां का वॉशरूम दिखाएं, वहां का वॉशरूम का रास्ता दिखा दें, कैसे पहुंच सकते हैं, एंड वहां पर भी टॉयलेट सीट के ऊपर लिड डाउन करके बिठाकर कंफर्टेबल कर दें बच्चे को, सो दैट द चाइल्ड बिकम्स कंफर्टेबल. चाइल्ड इज अवेयर कि वॉशरूम यहाँ पर भी है एंड इट इज ओके, अगर मुझे वॉशरूम आएगा तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ. द साउंड ऑफ फ्लश समटाइम्स स्केयर्स आवर चिल्ड्रन. अगर ये सब करने के बाद भी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो डायपर को नहीं छोड़ते हैं, देन समथिंग दैट हैज रियली वर्क विद आवर चिल्ड्रन इज थ्रोइंग अवे द डायपर इन फ्रंट ऑफ देम इन द डस्टबिन एंड शोइंग देम दैट इट इज नॉट अवेलेबल. या हमने 2 साइज छोटा वाला डायपर लाकर बच्चे को दिया कि अब आपका साइज में डायपर नहीं आता है, सो देन दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट नाउ आई हैव टू आउटग्रो. बट ये जो स्टेप है, ये हम तब फाइनली लगाते हैं जब बाकी हमारे जो स्टेप्स के बारे में, जिनके बारे में हमने अभी तक बात करी है, वो हमारे सक्सेसफुल हो गए हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो उसके अंदर कंफर्टेबल हो गए हैं. Another very important strategy is visual scheduling. So talking to them about toileting with help of pictures. अगर हमारे जो visual schedule के अंदर पी टाइम लगाया हुआ है, पीपी टाइम, पूप टाइम, तो द चाइल्ड ऑल्सो स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कि अब ये मेरा टाइम वॉशरूम जाने का है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट peeing and pooping not in the toilet is not out of stubbornness, it is not a behavior problem, it is a communication lag that is coming in between you and our child. And use diaper in an effective manner, become more aware not to use harsh language with our children, always accept whatever pace they are going at and telling them that it is all right and there is always a next chance to improve, there's always a next chance to do better. So once we go with that mindset, I think toileting becomes easier, toileting becomes more meaningful and it becomes more effective.